कब्र कुशाई की तो मैयत कब्र के अंदर मौजूद नहीं थी। यार ਉਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਲੈਬ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੋਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ और 2-3 दिन हो गए कि मैं ना सो रही हूँ, ना जाग रही हूँ, ना खा रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। मैं बेटे की लाश कहाँ देखूँ, कैसे दुआ करूँगी वहाँ पे? मौजूदगी, पुलिस की मौजूदगी और पैरामेडिकल स्टाफ और जो तो मैंने देखा कि बच्चा मेरा ना चारपाई पे लेटा हुआ है और मैंने पूछा कि क्या हुआ, कहता पता नहीं इसको क्या हो गया है। लेकिन मुझे सारी रात तड़पती रही हूँ कि ये बच्चे के ना ये नब्ज वेन वगैरह चेक कर रही थी कि चल रही है। और मुझे वो दरिंदे जिन्होंने मेरे बच्चे को कब्र में महफूज नहीं रहने दिया, बगैर किसी लड़ाई, बगैर किसी तनाज़ा लेन देन के तनाज़े की वजह से, मैं उनको देखना चाहती। वो कौन जालिम दरिंदे ऐसे हैं, किन्होंने इतना जिगरा किया है? खुदा के लिए मेरी मदद करें। ਕੁਝ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮਨਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜੋ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਦਫਨਾ ਬੈਠੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਇਹ ਮਲਾਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਫਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਸਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਸਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਉਹਦੇ ਕਮਰ ਤੇ ਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਾਂਸ ਬਾਕੀ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰੋ। पता नहीं क्या हो गया घर में, लेकिन वो मुझे जो रास्ता था ना, मुझे ये वो क़यामत से भी बढ़कर लगा कि मैं कैसे घर पहुंचूंगी। लेकिन जब घर आई आपने जब कब्र अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमेशा की तरह मुदस्सिर ने फैमिली कंटेंट प्रमोट किया। ज़िला ननकाना मोड़ खुंडे में मैं मौजूद हूँ और क़यामत से पहले क़यामत है। माँ खड़ी रो रही है, ये बच्चे की कब्र है। इंसान की आखिरी आरामगाह कब्र है, लेकिन इंसान कब्र में भी महफूज नहीं है। मामला क्या बना, ख़ुदकुशी का सिनेरियो बना। लेकिन जब लवाहिकीन ने कब्र कुशाई की तो मैयत कब्र के अंदर मौजूद नहीं थी। और ये बहुत बड़ी तड़प है कि माँ बाप के लिए कि बच्चे की दुआ के लिए भी आते हैं तो हमें ये फ़ील होता है कि बच्चा है ही नहीं अंदर। बात करेंगे, जानेंगे कितना इंसाफ मिला। चंद कदम पर पुलिस की चौकी है और यहाँ पर एक हॉस्पिटल भी है, यानी अदारों की नज़र है इस कब्रस्तान पर। उसके बावजूद इतना बड़ी नाइली कैसे हुई, बात करेंगे, जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आप बाप हैं? हाँ जी। बड़ा दुख है, अल्लाह तुहानू सब्र जमील दे ते इस बच्चे के दर्जात बुलंद करे। ये सारा मामला की पेश आया? सर 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਚ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਗਿਆ। ਘਰ 'ਚ ਅਕੇਲਾ ਸੀ। 3 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ, ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ 4 ਵਜੇ 3 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ, ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫ਼ੋਨ ਕਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ, ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਕ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸੀੜੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੀਵਾਰ ਫਲਾਂਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ जी। ਬੱਚਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਖੇ ਵਾਲੀ ਕੁੰਡੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਪੱਟਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਹਮਸਾਏ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਾਂਸ ਬਾਕੀ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰੋ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰਪਾਈ 'ਤੇ ਲਟਾਇਆ। ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਸਾਂਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। की लगता है क्यों एडा बच्चा इन्नी उम्र च ना कोई परेशानी, ना कोई डिप्रैशन, वो बच्चा सुसाइड या खुदकुशी क्यों करेगा? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲਾ ਮੋੜ ਖੁੰਡਾ ਦੇ ਸੀ, ਵਾਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਫਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਸਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਸਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਉਹਦੇ ਕਮਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਗਲੇ 'ਚ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ। गुसल तो पहले नहीं सी पता कि कुछ तशद्दुद है बच्चे ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਐਨ 11 ਵਜੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਮਾਮਲਾ ਛੋੜੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਿੱਛੇ ਰੁਲ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮਨਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜੋ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਦਫਨਾ ਬੈਠੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਇਹ ਮਲਾਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ थाने गए माँ हैं। का प्यार बच्चों से किस कदर है, ये माँ हमारे साथ मौजूद हैं, इनके भी चंद अल्फाज आप तक पहुँचाएंगे, क्या कहना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, अल्लाह आपको सब्र दे, आपका दुख मैं हल्का कर सकता हूँ, ख़त्म नहीं कर सकता। मुझे बताएं कि आपके नज़दीक ये सारा मामला कैसे है? आप एक माँ हैं, आप इसको किस तरह देख रही हैं? मैं एक माँ के साथ लेडी हेल्थ वर्कर हूँ और लोगों को, बच्चों के भी सेहत के ख्याल रखती हूँ। उस दिन महकमाना काम था, कुछ घर की ज़रूरियात थी, इसलिए मैं ज़िला ननकाना गई हूँ और हमसाई को बता के गई हूँ कि मैं ना घर से बाहर जा रही हूँ, मेरे मियाँ को बता देना। बच्चे स्कूल में थे। जब मैं वापस 5 बजे के लगभग आ रही थी, रास्ते में तो मुझे इनका फ़ोन आया और ये चीख रहे थे। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया घर में, लेकिन वो मुझे जो रास्ता था ना, मुझे ये वो क़यामत से भी बढ़कर लगा कि मैं कैसे घर पहुंचूंगी। लेकिन जब घर आई तो मैंने देखा कि बच्चा मेरा ना चारपाई पे लेटा हुआ है और मैंने पूछा कि क्या हुआ, कहते पता नहीं इसको क्या हो गया। लेकिन मुझे सारी रात तड़पती रही हूँ कि ये बच्चे के ना ये नब्ज़ वेन वगैरह चेक कर रही थी कि चल रही है। लेकिन जब सुबह गुस्ल दिया गया तो हमें पता चला कि बच्चे के साथ तशद्दुद हुआ है और इसको कत्ल किया गया, मर्डर किया गया। लेकिन हम बिल्कुल गरीब लोग हैं, हम कानूनी कार्रवाई करने के काबिल नहीं थे और हमारा जहन मौफ हो चुके थे। हम क्या करें, हमारी ना तो दुश्मनी है, ना हमारा लेन देन का झगड़ा है, ना कुछ। बच्चा भी हमारा बिल्कुल मासूम फूल जैसा था। आपने जब कब्र कुशाई का आपको क्यों ख्याल आया कि हम कब्र कुशाई कराएं और देखें, पोस्टमार्टम कराएं, ये ख्याल आपको किस तरह आया बाद में? ये इसलिए है कि हम देखो से हमारा दुश्मन कौन है। हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हम देखना चाहते हैं कि हमारे साथ कौन हसद कर रहा है, किसी ने हसद किया है, कोई दुश्मन है, हम उसको देखना चाहते, उसका चेहरा बेनकाब करना चाहते। और लोगों की बातें भी थी, कितना जवान बेटा चला गया और इन्होंने कदम नहीं उठाया। इसलिए ये पहले इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया गया कि हम ये पहले डे 1 से करवा लेते? हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, हम बस उस वक्त ना अपने आप में ना, आपको जो समझ आई आपने वो कदम लिया। हाँ, हम ना बिल्कुल माऊफ हो चुके थे। हमें ना कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। तो ये कितना बड़ा आलमिया है कि जिस दिन आपने आपको ऑर्डर मिल गए, कब्र कुशाई कितना अरसा बाद हुई है? 14 माह बाद 14 माह बाद तदफीन की 14 माह बाद 14 माह बाद हुई है। वो अदालत की लेट होती रही है, उस वजह से अब हुई है 14 माह बाद 17 फरवरी को। उन्होंने टाइम दिया आए। उसी दिन भी मैं महकमे के जरिए ननकाना में थी। जब ये कब्र कुशाई हुई है तो देखकर मैंने फ़ोन पे कॉन्टेक्ट रही हूँ तो कहता है कि अंदर लाश नहीं है, बॉडी गायब है। फिर मुझे पता है और मेरी कोलीग्स को पता है कि मैं कैसे घर तक पहुँची हूँ। और 2-3 दिन हो गए कि मैं ना सो रही हूँ, ना जाग रही हूँ, ना खा रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। मैं बेटे की लाश कहाँ देखूँ, कैसे दुआ करूँगी? मौजूदगी, पुलिस की मौजूदगी और पैरामेडिकल स्टाफ और जो खोदने वाले थे वो तकरीबन 10-12 बंदे 14 और सारा ये गांव था। 10 फुट गहराई तक गए, कोई चीज़ नहीं मिली कब्र से। तो जो डॉक्टर वो कहते हैं कि इसमें बॉडी बहुत चंद दिन रही है, बॉडी उन्होंने उस वक्त की निकाल ली है इस कब्र से। ये चंद कदम पर ये चौकी है, तो इतनी नाहली कैसे हो सकती है? चौकी साथ है सर। इधर ये जो मतवली है इसका वो भी इधर भी खड़ा है
वो भी इधर ही होता है, दिन को रात को क्या चला जाता है और दिन इधर ही होता है। पता नहीं ये कैसे हो गया, रात को कोई मसला आते हैं, हुआ हम है। अंकल से कहते हैं अंकल हमारा ख्याल रखना बच्चे का, ये ना मर्डर है इसका, किसी ने किया, आपने ख्याल रखना है। हम भी सुबह शाम आते हैं, पता नहीं किस तरह ये हो गया है, हमें नहीं गोरकन से पता। आपने बात नहीं की? गोरकन तो यहाँ पर रहते हैं, रखवाली भी करते हैं। हाँ, ये अंकल खड़े हैं सामने, पूछ रहे हैं, हम इनके साथ कांटेक्ट में रहे हैं कि अंकल जी आपने हमारा खसूसी ख्याल रखना है, हमारे बच्चे का ना कत्ल हुआ है, हमें इंसाफ के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। बढ़ गए हैं, ये मर्डर है, बिल्कुल ये मर्डर हुआ। गोरकन उन्होंने ने आपसे क्या कहा? गोरखा ने कहता बेटा आप बेफिक्र हो जाओ, लेकिन आप देखा है कब्र कुशाई हुई तो अंदर कोई चीज़ भी नहीं निकली। आपने उनसे नहीं कहा कि यार मैयत नहीं है, आपने देखा नहीं किसी को कब्र खोलते हुए, उसने कोई इंसाफ किया? उनका कहना था कि ये हम रात को चले जाते हैं, जो भी मामला हुआ रात के टाइम हुआ है, सुबह नहीं हुआ, हमारे सामने नहीं हुआ। सीएम पंजाब मरियम पंजाब की माँ हैं और माँ होने के साथ बड़ा काम कर रही हैं, आप भी एक माँ हैं, आप रेड लाइन है उनकी, तो वो देख रही हैं, क्या कहना चाहती हैं? मैं वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहब से अपील कर रही हूँ कि मैं लेडी हेल्थ वर्कर हूँ और आपने हमें बहुत प्रमोट किया है, और मेरी आपसे गुजारिश है खुदा के लिए मेरी मदद करें। मैं एक माँ हूँ और साथ सब लोगों के बच्चों की हिफाजत करती हूँ। जालिमों को बेनकाब करें और पूछ ले सामने मेरा लाएं। ये इलाके में इतना मेरी ड्यूटी मेरे सीनियर अफसरान से पूछ ले मेरा, मैं ड्यूटी कैसे कर रही हूँ, लोगों के बच्चों की कैसी खिदमत कर रही हूँ, और मुझे अपने बच्चे का इंसाफ चाहिए। और मुझे वो दरिंदे जिन्होंने मेरे बच्चे को कब्र में महफूज नहीं रहने दिया, बगैर किसी लड़ाई, बगैर किसी तनाज़ा लेन देन के तनाज़े की वजह से, मैं उनको देखना चाहती हूँ वो कौन जालिम दरिंदे ऐसे हैं, किन्होंने इतना जिगरा किया है। खुदा के लिए मेरी मदद करें, अल्लाह के लिए मेरी मदद करें। मैं एक नाज़रीन देखें माँ से बात किस तरह करें जिसके साथ इतना बड़ा ये हादसा पेश आया, इतना बड़ा सानिया। बाप भी खड़ा है। मरियम नवाज़ हमेशा नून लीगी हुकूमत ने जिधर जुल्म हुआ है दरवाजे तक गए हैं, तो खुदारा ये माँ, ये बाप, ये पूरा गांव आपका मुंतज़िर है, यहाँ पर आएँ, देखें और इंसाफ लेके दें। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।